پہلا کوشچن یہ ہے کہ سر شگر میں جو متوقع یارکن شگر کوریڈور ہے سر، اس حوالے سے صوبائی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی کہتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، چاہے معاشی طور پہ ہو یا سیاحتی طور پہ ہو یا کسی بھی اس پہ، تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ وہاں پہ روڈ. گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہم اسلام آباد سے کنیکٹیویٹی ہے وہ سنگل روڈ ہے KKH، جہاں پر ایک بھی اگر سلائڈنگ ہو جائے تو گلگت بلتستان 3 مہینے ہمارا بند ہو جاتا ہے. تو ہمیں آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے اور ہم نے اس چیز کو سیریسلی ٹیک اپ کیا. ایک ہمارا آلریڈی چائنا سے بارڈر ہے پنجاب تک. دوسرا ایک پاسبلٹی ہمیں نظر آئی جو یارکن سے، اس کے اوپر ہم نے پیپرز بھی بنوائے اور کافی کام بھی کیا، اور یہ آئیڈیا ہم نے نیشنل لیول پہ لیڈرشپ اور پلاننگ میں اپلوڈ کیا. اب ہمارے پاس جو آپ کو پتہ مسائل کافی بڑے پاور میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر ود ان GB، تو اس کے حوالے سے بجٹ ایک GB کا پیکج ہم کافی بڑا بنا رہے ہیں، لیکن یہ ایشوز بھی ہیں ساتھ میں یارکن. تو جو ابھی تک ہماری جو پاسبلٹی جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیجو تک جو روڈ کی انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب خود اپروول دیں گے، اور وہ اپ ٹو نئے آپ کے شگرتن کے روڈ سے بھی جائے گا اور سکرٹو روڈ سے بھی جا سکتا ہے. تو جانباز سے یارکن کی طرف جو روڈ ہے اس کا ایک EC2 بن کے اس کی فیزیبلٹی ہونی ہے، تاکہ ایکسپرٹس بتائیں کہ یہ کتنا فیزیبل ہے، یہاں پر کتنے مہینے اور ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے اور ٹریڈ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ میوچول انٹرسٹ کے اوپر چائنیز گورنمنٹ سے اٹھانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ روڈ بنے گا تو میرا خیال ہے شگر اور بلتستان ڈویژن بالخصوص اور گلگت بلتستان اور پاکستان بالعموم اس سے بہت زیادہ مستفید ہوگا. تو اس پہ ہماری کوشش ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ عبوری صوبے کی باتیں چل رہی ہے، صوبائی کابینہ نے اور اسمبلی نے جو ہے ریزولوشن بھی پاس کیا ہے، تو وفاقی لیول پر اس پہ ورک ہو رہا ہے سر؟ جی بالکل ہو رہا ہے. کابینہ نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے وفاقی. سینٹ میں چیئرمین سینٹ نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کا اعلان کیا جس میں اپوزیشنز اور حکومتی ارکان ہوں گے. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی نوٹیفائی کی ہے جس کا میں خود بھی ممبر ہوں، جو کہ اپنی سفارشات پرائم منسٹر کو بھیجے گی. اس کو مزید کس طریقے سے جو ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے کہ کیا 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 جا سکتا اور ہونا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اسمبلی میں ٹیبل کر کے اس کو تمام اپوزیشنز کو ساتھ ملا کے اس کو پاس کیا جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کا ایک ترینہ مدعا اس کو حل کیا جائے اور پورا کیا جائے. سر آپ پچھلے وزراء شیئر وزٹ میں آپ شیئر کے عوام کے لیے جو آپ کے وزٹ میں کیا اسپیشل گفٹ آپ لے کے آئے سر؟ جی ہم جو ایک تو آپ کا پیجو تک کا روڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا ہو جائے. ابھی تک انیشیل جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے 10 ارب کا، اگر پورا ایک ساتھ بھی نہیں کر سکے تو یہ 2 فیزز میں ہم ضرور کریں گے. اس کے بعد ہم ایک میگا ڈیولپمنٹ پیکیج، ایک تو GB کا ہے، ایک ود ان گلگت بلتستان میں جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں ان کی ڈیولپمنٹ کا ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ راجہ اعظم صاحب لیڈ کریں گے. اور یہ پہلے سال میں ہی آپ کو بہت ایک بڑے لیول پہ شگر کے اندر ڈیولپمنٹ کی سکیمیں لوکل ADP سے ملیں گی، جو راجہ اعظم صاحب یہاں کے عوام کے ساتھ مل کے سجیسٹ کریں گے، جو ہم ADP میں ڈالیں گے، جس میں آپ کا ایگریکلچر بھی ہوگا، آپ کی نرسریز بھی ہوں گی، آپ کے برجز بھی ہوں گے، اور پھر آپ کا جو ہاسپٹلز ہیں، آپ کے ایجوکیشن ہے، اور جو بھی چیزیں آپ کا پولیس اسٹیشنز اگر نئے بن رہے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، ہم اگر نئے ادھر کیا کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے ریگولر اس میں پوسٹیں کم ہیں، تحصیلدار نہیں ہے، AC نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس پورے نہیں ہیں، ان کو بھی اس میں پورا کیا جائے. ریگولر سائٹ کی سیٹس کو پورا کیا جائے، جو مسنگ سٹاف ہے ہیلتھ ایجوکیشن میں وہ پورا کیا جائے. اور اگر کہیں پر تحصیل کی ضرورت یا سب ڈویژن کی ضرورت ہے تو اسی ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت شگر کے عوام کو وہ بھی بنا کے دیا جائے تاکہ ان کے مسائل ان کے گھر کے تحفظ کے اوپر حل ہو. سابقہ 2 ادوار میں شگر پہ بلیم رہا کہ شگر سے اپوزیشن میں ہی ممبرس ہوتے ہیں، اس دفعہ حکومت میں ہیں. آپ شگر کی جو 2 ادوار کی ان کی محرومیوں کے ازالے کے لیے ایسا کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں
दूसरा मेरा सवाल ये है कि शिगर ज़री यहाँ पे सबसे ज़्यादा GB में सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन शिगर में वाक़ है। अब जो सुनामी जो ट्रिलियन ट्री है उसके हवाले से शिगर को बहुत ही नज़रअंदाज कम दिया जा रहा है। तीसरा ये है कि जितने भी पोस्ट क्रिएशन हाल ही में आप पुलिस का देखें कि हुंजा की आबादी और शिगर की आबादी आप कंपेयर करें तो शिगर की आबादी उसके डबल है, उसके बावजूद सबसे कम सीटें शिगर को ही क्यों? इसके लिए आप की हुकूमत क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि 2 अदवार में आपने अपोजिशन को वोट किया और इस दफ़ा आपने PTI के ऊपर भरोसा किया। दूसरी चीज़ शिगर की डेवलपमेंट के लिए अभी मैं अर्ज़ कर चुका कि जो पूरा मेगा प्रोजेक्ट एक PSDP की तरफ से बड़ी जो हाईवे आ रही है और फिर एक लोकली हमारी तरफ से, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ही विज़न है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम सब आप ये समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम और इंशाअल्लाह ताला शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट वज़ीर आज़म साहब लीड करेंगे और आपको ये अनप्रेसिडेंटेड स्कीमें खाली ADP से ही मिलेंगी। आपको मैंने बताया जैसे एग्रीकल्चर है, आज से पहले किसी ने आपको एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस नहीं किया होगा, डेयरी फार्म्स के ऊपर डिस्कस नहीं किया होगा। ये सब एस्पेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं और एक गवर्नेंस है, सर्विसेज हैं, आपके मिसिंग सीट्स हैं, आपके जहाँ पे तहसीलदार होना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए या मज़ीद दफातर होने चाहिए, वो भी मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं कि लोगों को उनके मसाइल का हल उनके घर के दरवाज़े पर। फिर हेल्थ के अंदर मज़ीद हॉस्पिटल्स बनाने से बहुत ज़्यादा लाजम है कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप डॉक्टर्स की कमी को, नर्सेज की कमी को पूरा करें। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और लोगों की खिदमत है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसमें शायद आपको अरबों रुपए की स्कीमें सिर्फ शिगर के लिए मिलेंगी। आपके अंदर के इंतज़ामी अमूर के लिए हम जो बेहतर कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, शायद हम तहसील बना लें या सब डिवीज़न बना लें या एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हम बेहतर फ़ाल करें। फिर उसके अंदर हम नई नर्सरीज़ बना लें, नए फॉर्म्स बना लें, लोगों के साथ पार्टनरशिप करके या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को हम इनकरेज करें। आपकी रोड्स बनाएं, आपके ब्रिजेस बनाएंगे और ये आप पहले साल की ADP, ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आप याद रखेंगे, ये टाइम ज़्यादा नहीं है, ये 3 से 4 महीने ही है। हमारी पहली साल की ADP शिगर के लिए आप देखेंगे और पिछले तमाम अदवार के 5-5 साल की ADP आप रख लें, इंशाअल्लाह ताला हमारी पहली साल की ADP शिगर के लिए उन सब के 5 साल के द्वार से पारी होगी। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि पुलिस में भर्तियां हो रही है सर, जी। तो पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में तकरीबन 40 से 50 हज़ार उम्मीदवारों ने फार्म सबमिट किए हैं, पोस्टें बहुत कम है, क्या मेरिट मुमकिन है? साथ ही नेशनल पार्क के हवाले से पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में अवामी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रही हैं, तो उस हवाले से क्या कमेंट्स करें? देखिए, ये अवामी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये कुछ मखसूस लोगों के सियासी नारे हैं और जिन लोगों ने सियासी नारे लगाए, ये बुलंद किए, और हैरानगी की बात है ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अदवार में भी ये नेशनल पार्क बनाया। ठीक है, अब कोई और शख्स करे तो हम कहें कि ये तहफ़्फ़ुज़ात है, कभी वो कहते हैं कि जी परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, कभी कुछ और कहते हैं। आप देखें कि यहाँ पर, अब मुझे पता नहीं शिगर में नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, अब कहीं पे भी कोई नेचुरल फॉरेस्ट हो और वहाँ पर कोई बंदा नेशनल पार्क ना भी हो, वो दरख्त काटे तो उसको पकड़ा जाता है, उसकी सज़ा होती है, वो जेल में जाता है। तो इट मीन्स कि देखें, आपका जो ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और वो प्रोटेक्टेड है। तो नेशनल पार्क डिक्लेयर करने से लोगों को मिसब्रीफ किया कि चीज़ें कुछ डिफरेंट होंगी या आपकी मलकियत चेंज होगी। हालांकि हमने जो नोटिफिकेशन की उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि मलकियत कोई चेंज नहीं होगी, ये कहीं पर भी कोई चेंज नहीं, और न घर बनाने में पाबंदी है, न ग्रेजिंग, आपकी जो चरागाहें उसमें आप माल मवेशी आप लेके उसको चराना चाह रहे हैं या उनको चरागाह पे लेके जाना, कोई रुकावट नहीं है। आप शायद जंगल के अंदर आपको जो लकड़ियाँ चुन के लाने में, उसमें भी आपको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हम और आप सब इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि हमने अपने जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये एक मैनेजमेंट है कि पहला जो हमारा मैनेजमेंट था फॉरेस्ट का, तबाह हो चुका है। आप दियमर में जाएं, आप अस्तोर में जाएं, जंगल तबाह हो चुके हैं।
मेरी नज़र के सामने जो जंगल थे आज वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैदान और पहाड़ रहे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन, या तो इसको इसी तरह से ही छोड़ा जाए या फिर हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो ये उन स्ट्रेटजीज में से है। अब मिनीमरग नेशनल पार्क में, मेरा अपना गांव नेशनल पार्क, तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपनी ज़मीनें किसी और के नाम पे निकाल दूं। अब मिनीमरग के अंदर जो मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा हम टेंडर करके देंगे लोकल लोगों को, ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये सब कुछ नेशनल पार्क के अंदर होगा, लेकिन उसके साथ साथ जॉब्स की क्रिएशन भी होगी और उनके जंगल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लोगों को इस तरह की इजाज़त नहीं होगी कि वो चुपचाप एक परमिट लेके जाते थे, 15-15 दरख्त ऊपर गिराते थे। फॉरेस्ट का जो नीचे चौकीदार होता था वो भी उनके साथ मिला होता। पुलिस तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को मिसब्रीफ किया। पुलिस मेरिट के हवाले से पुलिस का एक ये डिपार्टमेंट है। देखें, मैं 2 इलेक्शन पहले लड़ा, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में जो भर्तियाँ हुई हैं जो सबसे ज़्यादा साफ शफाफ और मेरिट पे, वो हम सब जानते हैं, पुलिस में। और इंशाअल्लाह ताला ये उससे बेहतर ज़्यादा मेरिट पे होगा। और न सिर्फ पुलिस पे, हमारे अदवार में आपको तमाम इदारों में मेरिट पे होगा। और हमारी कोशिश ये है कि मेरिट पे भी भर्तियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें, और जल्द अज जल्द इसी साल में आप देखेंगे कि हम हज़ारों की तादाद में भर्तियां करेंगे, ताकि नौजवान जो हैं वो मुलाजमतों में उनको मिले, ऑप्शन मिले। और फिर हमें ये भी अंदाज़ा है मुझे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पिछले 2 से 3 साल तक यहाँ पर भर्तियों का वो तसलसल नहीं रहा, जिसकी वजह से कई नौजवानों की उम्रें निकल गई। तो हम इस उम्रों को, जो उम्र है, वो जो एज लिमिट है, इसको भी कुछ 4-5 साल या 40 ईयर्स या 38 ईयर्स तक हम 2-3 साल एटलीस्ट या परमानेंट इसको एज लिमिट को बढ़ाएं, ताकि वो नौजवान भी जिनकी एज ओवर हो चुकी है वो इस टेस्ट इंटरव्यू में बैठें। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी हम बढ़ाएं, ताकि लोगों को रोज़गार के मौके, ये जो जितनी बेचैनी इसलिए कि यहाँ पर बेरोज़गारी बेइंतहा है। अब आप बताएं कि यहाँ पर मैं समझता हूँ मेरिट से पहले का जो सवाल है आपका, वो ये सवाल होना चाहिए कि 150, 200 या 250, 300 पोस्टों के लिए 40-50 हज़ार दरख्वास्तें हैं। जो अलार्मिंग है वो ये, तो हमें जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों पे कुछ ना कुछ करना होगा कि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या चाहे गवर्नमेंट की मुलाजमत में हो, ताकि लोग जवान जो है बेचैनी से जो निकलें और अपने कैरियर के ऊपर तवज्जो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।